Good morning students, myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Continue for class 10th. Now new chapter number 5, arithmetic progression. First we introduce what is the progression. What do you mean by progression? You know, in smaller classes we discuss about some sequences. For example, suppose we write 3, 5, 2, 1, 7, 10 like this one. Similarly 1, 2, 3, 4 they are natural numbers. Now next suppose 7, 10, 13, 16. There you can write the many sequence in this form. But here, what is the difference between continuous first two terms? You know 5 minus 3 is 2 and 2 minus 5. 2 minus 5 is minus 3. Next 1 minus 2 is minus 1. That means difference between continuous consecutive two terms are the different. Here 2, here minus 3 and here minus 1. But in second, 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is 1. That means difference between two consecutive terms are same. Similarly in next, 10 minus 7 is 3, 13 minus 10 is 3, 16 minus 13 is 3, also same. If difference between two consecutive terms are same, that is called progression. And this progression is called arithmetic progression. This difference may be positive and may be negative and may be fractional form. ये difference किसी भी form में हो सकता है. Okay student? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं arithmetic progression. That means difference are same. यहाँ पे हम बात करते हैं अगर डिफरेंस सेम है तो अपन अब यहाँ बात करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5.1. इन 5.1 there is only introduction of arithmetic progression. Suppose we write the AP. अब हम AP की बात करेंगे. AP is the short form of arithmetic progression. Now first term is A1, second term is A2, third term is A3 and fourth term is A4 and last term, nth term is AN. In first exercise they are given the some sequences and just find out which sequence are given in form of AP and which are not given in form of AP. Suppose first question is given here. The first question is given a taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 and for the first kilometer is rupees 8. That means first is the 15 and after first kilometer rupees 8 just increase. That means 15 plus 8 23. 23 plus 8 that means 31 and similarly like this one. So that means 15 plus 8 23, 23 plus 8 31 and similarly like this one. So this is called in AP. But in second part given in the form of the amount of the air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder. Suppose first is the one part, complete whole part, this is a one volume. Second 1/4 यहाँ से remove हो गया, तो that means
यहाँ से अगर 1/4 में रिमूव करता हूँ तो दैट मीन्स रिमेनिंग पार्ट इज द 3/4। अगेन 3 इसी का 1/4 पार्ट, दैट मीन्स अगर सपोज मैं इसको v लेट करता हूँ तो ये हो गया 3v/4। एंड नेक्स्ट इज अगेन इसी का 1/4 पार्ट, दैट मीन्स 3v/4 इट इज 1/4 पार्ट 1/4। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंसेक्यूटिव इज आर नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी, ये एपी की फॉर्म में नहीं है। तो दैट मीन्स हियर फर्स्ट given in AP, second is not given in AP, third is given in AP, and fourth part is the also amount in given in compound interest. And formula for compound interest, you know the amount is equal to P bracket 1 plus R upon 100 whole power n, where n is the time. So last is also given in not in form of AP. So similarly you can just solve the exercise number 5.1. बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, एक बार आप इसको सॉल्व कीजिए। इसमें केवल इंट्रोडक्शन है और कुछ भी नहीं। हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी मीन्स सपोज एपी इज गिवन। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2। Suppose one AP is given in form of A1, A2 and A3 and A4 and A5, and similarly last term is AN. इससे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर एक्सरसाइज वापस 5.1 के लिए। अभी आपने जो AP लिखा 7 and 7 plus 3 is the 10, 10 plus 3 13 and 13 plus 3 16। अभी जो कॉमन ये जो डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो 10 - 7 इज इक्वल टू 3, 13 - 10 इज इक्वल टू 3, 16 - 13 इज इक्वल टू 3। दिस 3 इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ एपी में हम इनको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, एंड दिस कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड राइट इन द फॉर्म ऑफ डी। इसको अपन कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। तो कहने का मीनिंग ये हुआ मेरा कि अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपको लिखनी हो तो आपको दो इंफॉर्मेशन चाहिए। एक तो फर्स्ट टर्म जहां से हमें स्टार्ट करना है और एक डिफरेंस के डिफरेंस कितना है, तो वही डिफरेंस प्लस करना हमें। अब वो डिफरेंस है पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव है तो प्लस करते जाइए, नेगेटिव है तो उसको माइनस करते जाइए। अगर मैं एक एपी को इसी फॉर्म में अगर लिखता हूं, सपोज फर्स्ट टर्म इज ए, तो व्हाट इज द सेकंड टर्म एंड कॉमन डिफरेंस द डी, तो डी को मैं प्लस कर रहा हूं, मींस ए प्लस डी। फर्स्ट वी राइट द एपी, सपोज A1 देन A2 एंड नेक्स्ट इज A प्लस 2D। एक डी को फिर वापस प्लस किया, A प्लस डी, दैट इज A प्लस 2D, दैट मीन्स इट इज थर्ड टर्म। अगेन एक और वापस से डी ऐड किया था, A प्लस 3D, A प्लस 3D, दैट मीन्स इट इज A4। अगर मैं बात करता हूं nth टर्म की, तो ये nth टर्म कैसे फाइंड आउट होती है, इसको अपन क्लियर करते हैं। यहाँ पर यहाँ आप देख रहे हैं व्हाट इज A1, A1 इज इक्वल टू A। यहाँ पे D का कोएफिशिएंट क्या है ये देखना अपन को। यहाँ पे जो D है वो D का कोएफिशिएंट है 0, क्योंकि D है ही नहीं, दैट मीन्स 0 into D इक्वल टू 0 एंड आंसर इज A। व्हाट इज A2, A2 इज इक्वल टू A प्लस D। D का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या है 0, 0 मीन्स 1 - 1। नेक्स्ट लिखते हैं A3, A3 इज A प्लस 2D, यहाँ 3 है तो यहाँ नंबर 2। नेक्स्ट लिखते हैं A4, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3 है। क्या ऑब्जर्व किया अपन ने कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं उस टर्म से एक लेस देन है, 2
minus 1, 3 minus 1 2, 4 minus 1 3, 1 minus 1 0। तो क्या हम अगर nth टर्म की बात करें, यहाँ पे कोई भी n में भी 7, 8, 9, 100, तो nth टर्म क्या होनी चाहिए? a प्लस, तो यहाँ d का कोएफिशिएंट क्या होनी चाहिए? इससे एक लेस देन, 1 लेस देन फ्रॉम n। तो यहाँ लिखिए n-1। तो किसका फॉर्मूला बन गया ये? nth टर्म। तो दैट मीन्स nth term of an AP is given by is equal to a plus n-1 d. This is the formula for nth term। तो nth term के लिए यहाँ पर 3 इंफॉर्मेशन होगी, a, n और d, where d is the common difference, n is the number of term जो आपको कहाँ कैलकुलेट, कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है, and a is the first term। इसके बेसिस पे आप एक AP को कैलकुलेट कर सकते हो और कोई टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे कोई भी आपने AP लिखा, सपोज वी राइट द वन AP, सपोज 17, 15, 13। अब यहां अगर मैं आपसे ये कहूं फाइंड इट्स 19th टर्म, मीन्स इट्स 19th टर्म। अब 19 टर्म अगर फाइंड करनी है तो एक एक माइनस करते जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो क्यों ना हम डायरेक्ट फाइंड आउट करें a 19th टर्म। तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए? a, what is a is equal to 17। कॉमन डिफरेंस, what is the common difference? कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए 15 minus 17, 15 minus 17 is 2, minus 2। आप चेक कर लीजिए, 15 minus 17, 13 minus 15, इसको भी एक बार चेक कर लीजिए, तो इट इज द -2। सो डी आपके पास आ गया और n की वैल्यू, n इज फाइंड द 19th टर्म, सो n इज 19 एंड यूज दिस फॉर्मूला an, राइट द फर्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं, n equal to a plus n-1 d। Now put the value, what is a is the 17 plus what is n, 19 minus 1, and what is d is the -2। करते हैं इसको सॉल्व। नाउ 17 माइनस प्लस माइनस एंड 19 minus 1 is 18, 18 into 2 is equal to 17 and minus 18 into 2 36, and finally 36 minus 17 means माइनस, और 36 में से 17 को आप माइनस कर दीजिए, it is the 9 and it is the 1। So finally minus 19। तो हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट कर ली? 19th टर्म। 19th टर्म इज इक्वल टू माइनस 19। ये मत सोचना यहाँ पे 19 है तो यहाँ भी 19 आएगा, ये तो इत्तेफाक से 19th टर्म हमने जो कैलकुलेट की वो वापस 19 टर्म ही आ गई, पर यहाँ ये नेगेटिव है। नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इट इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। first term and common difference may be positive and may be negative। इसमें आप कंफ्यूज ना हो प्लीज, ओके। तो स्टूडेंट ये आपके लिए देखा जाए तो एक्सरसाइज नंबर हमने 5.1 एंड 5.2 हमने डिस्कस कर लिया। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। जो सम है, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं अपन यहाँ पे। कुछ रेफरेंस बुक है मेरे पास, R.D. शर्मा, एंड देन फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज गिवन, एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग APs find the missing terms, means they are given, first question is 2 and then 26, and second question is then this one 13 and this one and 3, and third question is for example -4 and 1, 2, 3, 4 and 5,
इसके बेसिस पे आप बाकी के क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कैसे सॉल्व करते हैं? दे आर मिसिंग टर्म्स। अब ये मिसिंग टर्म्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सी बात है, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म अगर ये आपको कैलकुलेट मिल जाए तो आप कंप्लीट एक सीक्वेंस को लिख सकते हैं। तो मिसिंग टर्म्स इजीली फाइंड आउट हम कर सकते हैं। सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इन फर्स्ट क्वेश्चन a इज गिवन। व्हाट इज a इक्वल टू 2। जो जो गिवन है आपको वो आप लिखते जाइए। एंड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इज आल्सो गिवन। a3 इक्वल टू 26, बट कॉमन डिफरेंस इज नॉट गिवन। सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, ये अपन को फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड होते ही 2 में उसको प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कैसे फाइंड करते हैं? थर्ड टर्म इज गिवन 26। व्हाट इज a3? राइट द फॉर्मूला फॉर a3। a3 इज a प्लस 2d। कुछ नहीं किया मैंने, a प्लस n माइनस 1d, वही फॉर्मूला यूज किया। अब डायरेक्ट यूज करिए, a प्लस 3 माइनस 1 इज 2d इज इक्वल टू 26। ये आपको गिवन है। a इज 2 प्लस 2 इंटू d, d इज नॉट गिवन, 26। सो 2d इज इक्वल टू 26 और 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, 26 माइनस 2 24 एंड नाउ d इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12। तो व्हाट इज द मिसिंग टर्म? मिसिंग टर्म इज a2। a2 इज इक्वल टू 12। 2 प्लस 12 इज 14। इट इज द 14। चेक करने के लिए 14 प्लस 12 करेंगे तो 26 आ रहा है। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। Similarly, for the second question, first term is not given, okay, no problem. But second term is given. Second term is given. That means a2 equal to 13, and third is not given, but fourth term is given. So write the fourth term. Very good. Fourth term is equal to 3. Use the formula a2. What is a2? a2 is a plus d equal to 13. a प्लस n माइनस 1d, मैंने वही फॉर्मूला यूज किया। फोर्थ मीन्स फोर्थ टर्म इज a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इसको इसके नीचे लिखिए, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। यू नो दीज आर द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो अपन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, a कैंसिल, d अपन को मालूम नहीं था, माइनस 2d इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू माइनस 5। चलो d तो कैलकुलेट हो गया। d इज माइनस 5, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। सो a माइनस 5 इज इक्वल टू 13। सो व्हाट इज a इक्वल टू 13 प्लस 5 दैट इज 18। अब आपके पास मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? First term means is equal to 18 and next अपन को फाइंड करना था fourth term. So fourth term is equal to, आपके पास d की वैल्यू आ गई -5। तो 18 में -5 करो पहले आप। तो 18 माइनस 5 करते हैं अपन, तो वो -5 इसमें से कर दीजिए। 18 माइनस 5 12, oh sorry 13, okay, तो it is the 13. So a fourth is 13. चेक करने के लिए आपको वापस से अगर चेक करना है तो 13 माइनस 5 करिए। 13 माइनस अगर आप 5 करते हैं तो आपको मिलता है 8, और ये आपके पास देख लीजिए 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सॉरी 13 आपके पास ये 13 टर्म आ गया। ओके, कौन सा क्वेश्चन किया था अपन ने? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फाइंड करना था थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म आपको गिवन a2 एंड a4, और थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है। तो आपके पास आ गया ये फोर्थ टर्म अपन ने फाइंड आउट कर लिया एक्चुअली इसमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट रुको, ये 13 हो गया, 13 प्लस 5 18, ए आपके पास आ गया 18, ये आपके पास आ गया 18 और डी की वैल्यू हमने फाइंड की -5, तो इसमें -5 किया तो आपके पास मिला 13, और 13 माइनस 5 किया तो 13 माइनस 5 13
13 minus 5, so 13 minus 5 is equal to आपको मिलेगा 8. So this is the 8 and 8 minus 5 equal to 3. ये चेक हो गया आपका आंसर. तो ये तो आ गया क्वेश्चन. अब आप कहेंगे, कहने का मतलब क्या हुआ, एक सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए अगर मिसिंग टर्म आपको फाइंड आउट करनी है तो उसमें दो इन्फॉर्मेशन आपको 100% गिवन होगी. यहाँ भी दो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, यहाँ भी दो गिवन है और यहाँ भी दो गिवन है. इसके बेसिस पे आप ए और डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो. ए और डी अगर फाइंड कर सकते हो तो ईजिली आप पूरी सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ फर्स्ट टर्म आपको गिवन है ए इज इक्वल टू -4, ऑलरेडी गिवन. And first term, second term, third, fourth, fifth and sixth term is given equal to 6. A6 means A plus 5D is equal to 6. What is A? A is already given, -5 plus 5 into D is equal to 6. So 5D is equal to 6 plus 4 is 10. So D equal to 2. D equal to 2. अब D आपके पास आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें +2 करते जाइए. सो -2 और +2 करेंगे तो 0 and 0 plus 2 2, 2 plus 2 4, 4 plus 2 6. दैट मीन्स करेक्ट. इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं जो एक्सरसाइज 5.2 में आपको मिलेंगे. 5.1 और 5.2 इजीली आपने हम सोल्व कर सकते हैं इजीली. और ये n टर्म के फॉर्मूले के बेसिस पे ही हमने सोल्व किए हैं. कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ पर जो आप इजीली आप आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. एंड जैसे फॉर एग्जांपल वन क्वेश्चन द वर्ड प्रॉब्लम इज गिवन जो मैं आपको सोल्व कराने जा रहा हूँ. एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बेसिस पे फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज आज आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे. इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 99 मीन्स नाइन्थ टर्म, सो राइट हियर ये नंबरिंग ऑफ टर्म्स है, ऐसे लिखोगे. नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 99, तो राइट हियर 99 एंड 99th टर्म मीन्स ए 99th टर्म इज इक्वल टू, ये भी गिवन है 99th and 99th, sorry, 9th term of an AP is 99 and 99th term is 9 is equal to 9 and find the 108th term and then find 108th term. यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो. ये करने का तरीका मैंने आपको बता दिया. These two terms are given and find the 108 easily. What is A9? A9 means A plus 8D. एक कम कर दो इससे, इजीली डायरेक्ट कर दो 99. इसी के नीचे लिख लो A99 मीन्स A प्लस, इससे कम कर दो 98, D इज इक्वल टू 9. यहाँ पे A तो सेम ही रहेगा, इसलिए आपको न तो किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट. A को पहले कट कर दो, D की वैल्यू फाइनली फाइंड आउट कर लो. 98 minus 8 is 90D, बट हियर द -90D इज इक्वल टू, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 90. सो व्हाट इज D? D इक्वल टू -1. पुट D इज दिस फर्स्ट इक्वेशन, इजी रहेगा फर्स्ट इक्वेशन आपके लिए. A minus 8 equal to 99. So what is A? 99 plus 8 is equal to 99 में आपको 8 प्लस करना 107. I think is correct. 107 या 107 is correct answer. आपको A मिल गया. आप जब A की आपको मालूम हो गया, D भी आपको मालूम हो गया, तो A108 आपको फाइंड आउट करना है. A108 मीन्स A प्लस, इससे कम कर लीजिए 107D इज इक्वल टू व्हाट इज A? A इज 107 and 107 into D. What is D? D is the -1. माइनस प्लस माइनस, मैंने पहले से माइनस उसको लिख दिया. फाइनली आंसर सोल्व कर लीजिए. 107 minus 107 is equal to 0. It is the answer. That means 108 term is equal to 0. It is the answer. Okay student, तो हम बात कर रहे थे क्लास 10 के लिए न्यू चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5
जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 इसको आप डिस्कस करेंगे। डाउट्स को आप मुझसे पूछोगे, क्लियर पूछते हो तो हम अपन डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज अपन नेक्स्ट फाइंड करेंगे सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड गुड डे।